Every year, photochemical smog impacts millions of people around the world. Children have aggravated cases of asthma, bronchitis, schools are shut down, cars are forbidden from going on the road on certain days, but still we cannot solve the problem. Namaskar, I am Dr. Annapurna Singh, and today we'll discuss about the effects and the possible solutions of photochemical smog. So, what are the effects of photochemical smog? First, eye irritation caused by ozone and pan. Both ozone and pan are highly reactive and oxidizing compounds, and they irritate the eye like crazy. Then, irritation of nasal chamber and throat caused by ozone and nitric oxide. Chest pains, headaches, dryness of throat in extreme cases. Cracking of rubber and severe damage to plant life. तो ओजोन और पैन दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली रिएक्टिव है और आंखों को बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. इसके अलावा जो नेजल चैम्बर होता है और गले में खराश, वो भी ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होती है. इसके अलावा ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो चेस्ट पेन, हेडेक, गले में खराश और सूखी खांसी एक्सट्रीम केसेस में हो सकते हैं. और साथ ही साथ क्योंकि ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो क्रैकिंग ऑफ रबर, मतलब रबर को, क्योंकि रबर जो है अगेन वो पॉलीमर का बना होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो रबर को अटैक करता है और रबर खराब हो जाता है, क्रैक हो जाता है. और प्लांट्स को बहुत ही सीवियरली डैमेज करते हैं. उसमें मैंने खुद भी रिसर्च की हुई है कि ओजोन हो, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो या नाइट्रिक ऑक्साइड हो, ये सभी प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं. एक्सेप्ट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को मेटाबोलाइज कर पाते हैं, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता है. बट ओजोन और पैन से हर प्लांट को नुकसान पहुंचता है. Smog episodes around the world. First smog episode that was witnessed was in Los Angeles, and it was on July 26, 1943. And initially people thought that the city was attacked by chemical warfare, but no. Later on, Ari Hagen Smith, a chemist, identified that it was the effect of their own vehicular pollution. It was photochemical smog caused by hydrocarbons and oxides of nitrogen released in the atmosphere due to vehicular air pollution. Then there is Mexico City, the capital of Mexico, that was affected by photochemical smog, and that gets affected by photochemical smog every year. Then Santiago in Chile, South America, another city affected by photochemical smog. Then Tehran, the capital city of Iran, is affected by photochemical smog. New Delhi is affected by photochemical smog. तो स्मॉग एपिसोड पहली बार लॉस एंजल्स में हुआ था जुलाई 26, 1943 में, और लोगों को लगा कि केमिकल वॉरफेयर हो गया है उनके शहर में. बाद में एरी हैगन स्मिथ नाम के एक केमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोई केमिकल वॉरफेयर नहीं है, आपने जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन किया है उससे जो हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हुए वही हवा में रिएक्ट करके ये स्मॉग बना रहे हैं. और उसके बाद मेक्सिको सिटी में, सैंटियागो जो चिली की राजधानी है, तेहरान जो ईरान की राजधानी है, और न्यू दिल्ली में हर जगह फोटोकेमिकल स्मॉग विटनेस किया गया. ये मेक्सिको सिटी का नजारा है. मेक्सिको सिटी में भी स्मॉग होता है, इस तरह से ब्राउनिश येलोइश हेज है क्लाउड का, फोटोकेमिकल स्मॉग है. क्योंकि मेक्सिको सिटी जो एक वैली में लोकेटेड है, तो वहां भी अगेन एयर ट्रैप हो जाती है, और आसपास ऊंची जमीन है और नीचे वैली है, तो वैली में एयर ट्रैप हो जाती है और पोल्यूटेंट डिस्पर्स नहीं हो पाते, और फिर वहां इन्वर्जन कंडीशन होता है और फिर वहां स्मॉग होता है. Situated in a valley and relying heavily on automobiles, Mexico City often suffers from poor air quality, resulting in photochemical smog. The Delhi smog problem, ये तो बहुत ही कॉमन है, हम सब जानते हैं. Every winter, children, especially those below 5 years of age and senior citizens, suffer from severe asthma and lung diseases due to smog in Delhi and NCR. NCR is National Capital Region. 1 in every 3 children in Delhi have impaired lung function. Delhi is not alone. It's the 51 crore people living in entire North India. और ये क्यों होता है? क्यों स्मॉग नॉर्थ इंडिया और दिल्ली को ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन तो हर जगह है? First of all, the entire North India is highly congested and highly populated. ज्यादा लोग वहां रहते हैं, ज्यादा गाड़ियां वहां चलती है. Okay, so there is more people and more vehicles, so there is more pollution. And second and more important reason is the presence of Himalayas. The same Himalayas that preserves the North India from the cold winds
from Central Asia actually causes smog. Because when Himalayas are like this on top and the plains are here, the air again is not able to disperse. So the entire pollution over North India is not able to disperse. It remains where it is because the Himalayas is obstructing the flow of air. And as a result, the air gets trapped, the pollutants get trapped in the troposphere, and hence the smog formation happens because all the pollutants are there to react among themselves and form smog. And it starts in the month of October and November with inversion conditions. Okay? क्यों होता है मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हिमालय ऐसे है पहाड़ और नीचे प्लेन्स है, तो जो हवा है प्लेन्स की वो बहुत ऊपर नहीं उठ पाती क्योंकि हिमालय उसको रोक रहा होता है, तो हवा और प्रदूषण दोनों वही ट्रैप हो जाते हैं लोअर ट्रोपोस्फेयर में, और एज अ रिजल्ट कि जब ट्रैप हो जाते हैं तो सारे पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और स्मॉग बना देते हैं। ये दिल्ली एनसीआर का एक पिक्चर है, तो ये हिमालयस है, हिमालयन माउंटेन है यहाँ पर ऊपर में नॉर्थ में, और यहाँ पर सारा स्मोक ट्रैप हो जाता है। During autumn and spring months, some 500 million tons of rice and wheat crop residues are burnt, and winds blow from India's north and northwest towards the east. ठीक है? This aerial view shows India's annual crop burning, resulting in smoke and air pollution over Delhi and adjoining areas. तो इसमें दिख रहा है जो खेती भी यहाँ खूब होती है और जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उसको जलाया जाता है। तो पहले तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन ज्यादा है, ऊपर से क्रॉप रेसिड्यूज को जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और हिमालय की वजह से वो जो एयर है वो बहुत डिस्पर्स नहीं हो पाती और पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को वो अफेक्ट करती है। इस डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से ये फोटो में दिखाया गया है, नासा के द्वारा ये फोटो है, और ये दिल्ली का एक कनॉट प्लेस के ऊपर का एक फोटो है जो लिया गया था जाड़े की किसी दिन में। Along with stubble burning, automobile pollution adds primary precursors. Inversion condition during October and November, along with heavy load of pollutants, causes smog. ठीक है? So what's the solution? Problem हमको पता है, अब solution क्या होगा? How to control photochemical smog? Control vehicular emission by reducing car use. तो vehicular emission को कम कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि वो तो आपके कंट्रोल में है। हिमालय को तो आप हटा नहीं सकते हैं, पर vehicular emission को तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाड़ियां कारें कम चले। Emphasize public transport so more people could be transported using less vehicles. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एम्फोसाइज कीजिए, क्योंकि जहाँ पे एक कार में 1 से 2 लोग बैठ के ऑफिस जाते हैं, एक बस में 40 लोग बैठ के ऑफिस चले जाते हैं, तो जाहिर है वो 40 कारों की जगह एक बस का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एक बस से प्रदूषण होगा, 40 कारों से प्रदूषण नहीं होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा दिल्ली में मेट्रो है, वो बहुत अच्छा काम करती है। मेट्रो से हजारों लाखों की संख्या में लोग आगे पीछे ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, टूरिस्ट घूमते हैं, तो मेट्रो एक बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा कंट्रोल स्टबल बर्निंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 44% ऑफ विंटर एयर पोल्यूशन। 44% मतलब लगभग आधा पोल्यूशन तो स्टबल बर्निंग से ही होता है, इसलिए वो प्रॉब्लम विंटर में ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप स्टबल बर्न करते हैं, मतलब खेती का जो सूखी घास वगैरह है वो आप बर्न करते हैं, वो सरकार को बंद करना चाहिए। उस स्टबल को लेके सरकार को कुछ फ्यूल में बायोमास गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट का प्लांट लगाना चाहिए उस स्टबल को लेके, तो पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा और उससे ऊर्जा भी मिलेगी। सो द स्टबल दैट इज बर्न्ड in the rural areas around Delhi NCR should actually be utilized for biomass gasification plants. So that way the stubble burning will be avoided and biomass gasification will yield fuel. So stubble burning could be avoided. Burn less firecrackers in Diwali. दिवाली में पटाखे जलाने से एकदम से पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो पटाखे कम जलाइए, जलाइए ही मत, दियों की दिवाली बनाइए, फूलों की दिवाली हो, दियों की दिवाली हो, पटाखे न जलाएं। स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक सोलर पावर, और सोलर पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। छत पे सोलर पैनल लगा दीजिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। कारों में सोलर पैनल लगा दीजिए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली नॉक्स और हाइड्रोकार्बन पोल्यूशन को कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा प्लांट्स, ट्रीज लाइक पाइन्स, आई एम सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग, जूनिपर्स, पायरस या पेयर एंड विटिस या ग्रेप्स अलोंग द रोड साइड, क्योंकि ये स्पीशीज जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को मेटाबोलाइज करते हैं। ये वही स्पीशीज है जिन पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है या मिनिमल पड़ता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, तो इनको कोई नुकसान नहीं होता है उससे। और तो रोड साइड में अगर आप इन स्पीशीज को लगाएंगे तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिट होगा वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा ही नहीं तो फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म होंगे ही नहीं। सो टू प्लांट ट्रीज लाइक पाइन, जूनिपर्स, पायरस और पियर्स, which or grape along the roadside, these will metabolize nitrogen and will not let smog happen. ठीक है? Pine की मैंने फोटो, I've given pictures of all these species so you know what it is. So this is pine, this is juniper, these are all coniferous, this is pear, we all know pear,
This is again oak. It's a deciduous species. That is why it changes colors and then finally shed leaves. And आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. In case you have any doubt, any confusion, please let me know in the comments below. Also, if you like this video, please do share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. And please check out the description box. Jai Hind, Jai Bharat.